श्रीलंका दौरे के बाद मेन इन ब्लू के लिए ये एक छोटा ब्रेक रहा है, तो वहीं हमारी विमेन इन ब्लू हो रही हैं तैयार 2024 आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए, और हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर ये सारा अपडेट। हेलो एंड वेलकम, फॉलो द ब्लूज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इकलौता शो जो लाता है आपके लिए टीम इंडिया की सभी लेटेस्ट अपडेट्स। हमने तैयार किया है आपके लिए एकदम एक्साइटिंग शो, लेकिन शुरुआत करने से पहले दिखा दें कि शो का लाइनअप क्या है। फॉलो द ब्लूज में आज हम जानेंगे कैसे ब्लूज कर रहे हैं तैयारी बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए। Couple of solid tours coming up as well, very challenging ones as well. So yeah, for us, I mean, it never stops. Once you achieve something, you always look forward to achieving more. वहीं पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने क्या बताया टीम इंडिया की बारबाडोस में टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद अपनी खास सेलिब्रेशन के बारे में। When you have moments like that, either as a player or as a coach, just to be able to go on a campaign with people that you respect, people that you admire. और 2024 आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप से पहले हमने की मुलाकात ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा से, जिन्होंने किया याद टीम इंडिया के साथ अपने 1 दशक लंबे सफर को। डेब्यू करा तो थोड़ा नर्वस थी, बट काफी मजा आ रहा था। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ को हाल ही में 2024 के सीएट अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उनके मार्गदर्शन में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर 29 जून को 2024 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया और आईसीसी ट्रॉफी का 11 साल का सूखा खत्म किया। तो सुनिए क्या कहना है भारत के पूर्व हेड कोच का जीत के बाद बारबाडोस में अपने सेलिब्रेशन को लेकर। That video was incredible. That visceral reaction that you had to lifting a World Cup, Rahul. You, who's someone who's I've always associated, so dignified, keep the calm, but that pure joy, that adulterated emotion, you just let it flow. But the honest fact is, and that's the truth, is that you're actually failing a lot more than you're succeeding in this game. And the list of failures and the list of disappointments would be quite a lot as well in a long career. But that's what makes it all so much more fun, so much more enjoyable when you have moments like that, either as a player or as a coach, just to be able to go on a campaign with people that you respect, people that you admire, people that you look up to, people who go through ups and downs with you in life, and then to come out at the other side and to win trophies and to win events, to win test matches, to win one-day games, to win championships, I think it's a fantastic feeling. It's a great feeling. It's a lovely feeling to be a part of. It's a great feeling to be a part of a team and to strive to achieve something together. And yeah, when you come at the end of it, you have moments like that, and it's just great to celebrate. Trying to avoid showing that to my children, thinking I've gone mad or something. But yeah, I was always telling the boys that we got to maintain our balance and we got to remain cool and not go up and down with the results, and that's been my constant message to the team. Thank God that was my last game, because otherwise after that they would have said, you're saying one thing but you're doing something else. श्रीलंका में हाल ही में खत्म हुए व्हाइट बॉल टूर के बाद हमारे ब्लूज ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस ब्रेक में ब्लूज कर क्या रहे हैं? समय है हमारे सोशल मीडिया अपडेट्स का। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज से पहले कप्तान रोहित शर्मा जिम में जमकर बहा रहे हैं पसीना और फोकस पर है फिटनेस। जी हां, हिटमैन दिखाई दिए जिम में एक बड़े टायर को धकेलते हुए अपने इस कड़े वर्कआउट सेशन में। हाल ही में सीएट अवार्ड्स का समापन हुआ, जहां रोहित ने टीम इंडिया के साथ अपने फ्यूचर को लेकर एक साफ इशारा किया। Is that what you foresee now in terms of laying down your ambitions and your team's ambitions for the coming year? Because there's still trophies. There's a trophy to be won in whites as well.
there's a reason I won 5 IPL trophies as well. I'm not going to stop, because once you get the taste of winning games, winning cups, you don't want to stop. And, we'll keep pushing as a team. We'll keep striving for bigger things in the future. We've got a couple of solid tours coming up as well, very challenging ones as well. So yeah, for us, I mean, it never stops. Once you achieve something, you always look forward to achieving more. And that is what I would be doing as well. I'm pretty sure, my teammates will be thinking on the same lines as well. It's an exciting time for Indian cricket moving forward. हिटमैन ने अपने फैंस के लिए निकाला समय और मुंबई में फैंस को किया खुश उनके साथ फोटो खिंचवाकर। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह भी इस ब्रेक में अपनी फिटनेस पर काम करते दिखे। वहीं ऋषभ पंत तो फिलहाल दिलीप ट्रॉफी का हिस्सा हैं, खुद को कर रहे हैं तैयार लंबे फॉर्मेट के लिए। मेन इन ब्लू से अब बढ़ते हैं विमेन इन ब्लू की तरफ। 3 अक्टूबर से भारतीय महिला टीम दुनिया की बेस्ट टीमों के खिलाफ भिड़ेगी 2024 आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में। भारत के स्पिन अटैक की अगुवाई करती नजर आएंगी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा, जो अब महिला टीम के साथ 1 दशक का सफर पूरा कर रही हैं। तो क्या है दीप्ति का अल्टीमेट गोल और कैसा रहा है उनका ये सफर, जानते हैं इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। सबसे पहले तो शर्मा जी की बेटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश के लिए आप शर्मा जी की बेटी हैं, अब आपकी मिसालें दी जाती हैं। तो क्रिकेट में इतना बड़ा इम्पैक्ट लाकर दीप्ति शर्मा को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली फैमिली को काफ़ी प्राउड होता है और स्पेशली पेरेंट्स को, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है और इनिशियली और अभी तक उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा है। और ऑब्वियसली जब अच्छा करती हूँ तो काफ़ी प्राउड फील करते हैं वो और नेबर्स लोग, और मुझे भी अच्छा लगता है जब ऐसे बोला जाता है कि शर्मा जी की बेटी ने अभी ये मैच जिताया या अभी ऐसा करा परफॉर्मेंस वाइज, तो काफ़ी प्राउड फील होता है खुद में। डेफिनेटली। दीप्ति शर्मा, वो जो छोटी सी लड़की आगरा में बैट लेकर घूमा करती थी, क्या उस छोटी सी दीप्ति शर्मा ने कभी सोचा था कि वो इंडियन टीम की जर्सी पहनेगी? और अब तो आपको टीम इंडिया के लिए खेलते खेलते 10 साल हो चुके हैं, तो क्रिकेट पे इतनी ऊंचाइयां पाएगी, क्या उस छोटी दीप्ति शर्मा ने कभी ऐसा सोचा था? ऑनेस्टली बोलूँ तो बिल्कुल नहीं सोचा था। यस, ड्रीम था कि अपनी कंट्री के लिए खेलना है और इंडिया जर्सी पहननी है। और हाँ, जब छोटी थी वहाँ से लेके काफ़ी हार्ड वर्क करा है और पेरेंट्स ने थ्रू आउट मेरी अभी तक की जर्नी में बहुत सपोर्ट रहा है उनका, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आई थिंक काफ़ी उसके पीछे काफ़ी हार्ड वर्क है जो कभी दिखता नहीं है, लेकिन बस यही है कि उस टाइम मैं छोटी थी और अभी एज अ लीडर और एज अ सीनियर प्लेयर के रूप में देखा जाता है, तो काफ़ी खुद से काफ़ी मोटिवेट होती हूँ कि अपने जब मैं छोटी थी वो दिन देख के, और अभी जब चैलेंजेस लेने की बात आती है तो हमेशा मैं रेडी रहती हूँ कोई भी चैलेंज को लेने के लिए। और ये हमने देखा है दीप्ति, जब भी कोई चैलेंज सामने होता है दीप्ति शर्मा वहाँ पे डटी रहती है। और आपने भी कहा अब आप सीनियर खिलाड़ी हैं, आपने जूनियर दीप्ति शर्मा से सीनियर दीप्ति शर्मा की जो जर्नी है टीम इंडिया में वो तय की है। आप द लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, चाहे वो झूलन गोस्वामी हो, चाहे वो मिताली राज हो, पहले आपने उनके अंदर खेला, अब टीम में श्रियंका है, ऋचा है। तो ये जो ट्रांजिशन रहा है, ये फ्रॉम जूनियर दीप्ति टू सीनियर दीप्ति, ये ट्रांजिशन कैसा रहा है दीप्ति के लिए? और ये इंडियन क्रिकेट में जो आपने ट्रांजिशन देखा है वो आपके लिए कैसा रहा है? ऑब्वियसली क्योंकि जब मैंने अपना डेब्यू करा था तो जूलू दी और मिताली दी वॉज देयर, तो उनको देख के हमने सीखा कि हम उनसे क्योंकि हमेशा रहता था कि नहीं उनके साथ में खेलना है, ड्रेसिंग रूम शेयर करना है। तो जब डेब्यू करा तो थोड़ा नर्वस थी, बट काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा था। लेकिन जब इनिशियली डेज़ निकले उसके बाद में नहीं पता चला कि नहीं, बस देखने में डर लगता है, अदरवाइज़ वो बहुत चिल करते हैं। और फिर ऑब्वियसली जब मैं एज अ सीनियर बनी तो काफ़ी अच्छा लगता है जो भी यंगस्टर आ रहे हैं उनको सपोर्ट करना, कि जब हम लोग नेक्स्ट सेशन करते हैं तो कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो हमेशा बात होती है कि जब जो भी बॉलिंग ग्रुप है तो ऑलवेज लीडर बनाते हैं, तो एक
एक पॉजिटिव भी रहता है कि नहीं चलो अब लीडर का रोल मिल रहा है तो हमेशा मैं कैसे अपने बॉलर्स को हेल्प कर सकती हूँ आने वाले टाइम में या जो भी मैचेस होने वाले हैं। तो चैलेंजेस जैसे मेरे को स्टार्टिंग से ही अच्छा लगता है तो हमेशा मैं रेडी रहती हूँ, चाहे खुद के लिए हो चाहे किसी को देने के लिए हो, तो अच्छा लगता है वो चीज़ मेरे को। फॉलो द ब्लूज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन भूलिएगा मत अपने सुझाव और अपनी राय हमारे साथ सोशल मीडिया पर #FollowTheBlues का इस्तेमाल कर शेयर करें। हम आपसे यूं ही हर संडे सुबह 9 बजे मिलते रहेंगे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। लेकिन गुड बाय करते हुए थोड़ा समय में पीछे जाते हैं और याद करते हैं 9 सितंबर 1994 को, जब सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे इंटरनेशनल डेब्यू के 5 साल बाद लगाया अपना पहला वनडे इंटरनेशनल शतक। उन्नीस सौ 94 सिंगर्स वर्ल्ड सीरीज में भारत का सामना था ऑस्ट्रेलिया से। एक क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट जिसमें 4 टीमें थी, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। अपने डेब्यू के 5 साल बाद सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई में अपना पहला शतक लगाया। हाल ही में बतौर ओपनर प्रमोट किए गए सचिन ने अपना 50 सिर्फ 43 गेंद में पूरा कर लिया। उनके 130 गेंद पर आए 110 रन की मदद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 247 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 215 रन पर सिमट गई और टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में 31 रन से जीत दर्ज की। लेकिन यह दिन रहा युवा तेंदुलकर के नाम, जिन्होंने टीम इंडिया के लिए 78 वनडे इंटरनेशनल्स के बाद आखिरकार अपना पहला ओडीआई शतक लगाया।